Okay. Good morning, dear students. Today I would like to start the topic hormonal control coordinations. That is the topic of the human physiology. I would like to translate it in English, in Hindi version and also Odia versions. Okay, 3 languages. I would like to utilize that topic, English, Hindi and Odia. Okay, so my dear students, let's start. Topic name hormonal control and coordination. Before that, I would like to introduce with you that I am a senior expert. I have produced the first rank in India since last 25 years. Okay, I have been produced the first rank in India. It's AIMS first rank. So many times, 10 to 12 times first rank in India. And also I have given the first rank in NICER, ICER, OUT also. Okay, so that today that is a favorite topic for you also. That is hormonal control coordinations, how the hormone control to other to glands and how the hormone produced from the endocrine glands. Let's start about this topic. Okay, you know hormones. Hormones क्या होता है? Do you know about the hormone? Hormones होता है that is the information molecules. You know hormones are known as information molecules. So that is known as chemicals. Hormones होता है chemicals. Do you know hormones? That is known as chemicals. That is known as chemicals, or that is known as chemical messenger. Hormones is known as chemical messenger, or hormones is known as information molecules. Hormones that require a little bit to us, very trace amount. Little bit means little amount of hormones that require for us, not much amount, yeah, zero amount, little bit, trace amount. Hormones require in trace amount, not in more amount, yeah, zero amount. Little bit hormone is required for us. So hormone require in small amount. Hormones require for human being in a trace amount. In a trace means little bit. Trace amount. In a trace amount. That is little bit hormone required. Okay. You know, if more hormones require, that causes the disease. If little bit, if zero amount require, that also causes disease. Deficiency of hormone, you know, so many diseases takes place in human being. More amount of hormone causes different type of disease. For example, suppose little bit of low amount of growth hormone. Do you know if the hormone, growth hormone, do you know about growth hormone? If growth hormone will be zero in our body, then our body cannot be developed. Do you know growth hormone? If growth hormone will be more amount, then also that causes a disease. That is gigantism. Your bone will tall, you will be tall, gigantism. If hormone will be zero in our body, growth hormone, then you will be stunted growth, dwarfism, that is known as bona. जिसको कहते हैं बोना बामन हार्मोन कम ही गले बामन हो हार्मोन जब बढ़ी चलो ग्रोथ हार्मोन बढ़ी चले तुम डेंगारे बढ़ी चलो तेणु हार्मोन एक एग्जांपल रखा दैट इज सो मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन आई विल टेल यू एक हार्मोन बॉडी में नहीं है बहुत सारे हार्मोन्स का नाम बताऊंगा बहुत सारे हार्मोन्स का फंक्शन बताऊंगा हार्मोन का कमी क्या डिजीज होगा हार्मोन ज़्यादा होने में क्या डिजीज है सभी हार्मोन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है सभी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो हार्मोन्स रिक्वायर फॉर ह्यूमन बीइंग इन ए ट्रेस अमाउंट not more amount and hormones do you know hormones are non nutrient chemicals that is not derived from any food कोई फूड से हार्मोन नहीं आया विटामिन का नाम अगर होता है तुम बोलते कि इसी फूड में इसी में विटामिन है इसी वेजिटेबल्स में विटामिन है इसी फ्रूट्स में विटामिन है लेकिन हार्मोन्स कोई फ्रूट्स में नहीं आया कोई वेजिटेबल्स से नहीं आया कोई भी न्यूट्रिएंट से नहीं आया कोई भी न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट से तो तुमको पता है चावल खाते हो कार्बोहाइड्रेट है रोटी खाते हो प्रोटीन है या मिल्क पीते हो प्रोटीन है जितना सब फैट चीज़ लेते हो ये घी तेल से फैट चीज़ है लेकिन हार्मोन कोई भी न्यूट्रिएंट से नहीं आया हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हार्मोन्स
दैट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट नहीं होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। तो हार्मोन का ऊपर हम अगर स्टडी करते हैं, ये है हार्मोन, जो हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा बॉडी में हार्मोन एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट रखेगा, हार्मोन्स का माध्यम से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके रखेगा, उसी का ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो हार्मोन्स कहाँ से आता है? कोई तो विटामिन टॉनिक नहीं है, कोई सिरप नहीं है तो खा लेंगे तो हार्मोन आ जाएगा, या कोई भी न्यूट्रिएंट ले लो हार्मोन मिल जाएगा। तुम बोल रहे नहीं मेरा बॉडी में ये आयरन कमी है, ठीक है मैं केला ले लेता हूँ आयरन है, ठीक है मैं ये अनार ले लेता हूँ आयरन है, या टमाटर ले लेता हूँ आयरन है, या प्रोटीन कमी है तो मिल्क पीता हूँ। तो हार्मोन के लिए क्या है? हार्मोन का तो कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो हार्मोन तुम्हारा बॉडी से ही सिंथेसिस होगा, हार्मोन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी। हार्मोन कहाँ से सिंथेसिस होगा? हार्मोन दैट सिंथेसिस फ्रॉम ए ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लैंड, प्रोड्यूस फ्रॉम, जो ग्लैंड से प्रोडक्शन होगा फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक हमारा बॉडी में जो क्यूबिटल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो मॉडिफाई हो जाता है। हमारा बॉडी में एक ही ग्लैंड नहीं है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक ही तो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है ना, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। सभी एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, सुना होगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन आता है, सुना होगा। थायरोक्सिन तुम्हारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म करेगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट। थायरोक्सिन तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा, ये भी पता है, Na+Cl- इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl को बैलेंस करेगा। थायरोक्सिन तुम्हारा मेटाबॉलिज्म करेगा, तुम्हारा सेल में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को मेटाबॉलिज्म करेगा। थायरोक्सिन तुम्हारा ब्लड भी बनाएगा, अगर ये मालूम नहीं तो जानकर ले लो। थायरोक्सिन तुम्हारा ब्लड बनाता है, थायरोक्सिन फॉर्म द ब्लड, थायरोक्सिन डू मेटाबॉलिज्म, थायरोक्सिन मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स Na+Cl-। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो बच्चे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन आता है। तो थायराइड ग्लैंड, अगर तुम बोलोगे नहीं थायरोक्सिन का कमी हो जाता है तो कौन सा बीमारी होगा? दैट इज गॉइटर। थायरोक्सिन का कमी से गॉइटर होगा, गलगन कहते हैं, घेंगा, गॉइटर। और थायरोक्सिन अगर बढ़ जाएगा, एक्सेस थायरोक्सिन, तो भी बीमारी होगा। क्या बीमारी होगा? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। आईबॉल कम्स आउट फ्रॉम द आई सॉकेट, ये सब आईबॉल यहाँ आई सॉकेट से निकल जाएगा, इसे आईबॉल झूलते हुए मिलेगा इसे। तो आईबॉल क्योंकि एक्सेस थायरोक्सिन है ना, कजेस्टा एक्सोप्थेल्मिया, क्या कहते हैं? एक्सोप्थेल्मिया, एक्सेस थायरोक्सिन। तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे तुमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया कि ग्रोथ हार्मोन सर 0 हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, मैंने बोला कि बोना हो जाओगे, बामन, स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तुम बोल रहे हो नहीं बहुत ऊंचाई पे बढ़ जाऊंगा, टॉल हो जाऊंगा, तो जाइगेंटिज्म। ऐसे थायरोक्सिन के बारे में मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स है, जैसे सुना होगा और एक ग्लैंड है आड्रेनल ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोकेटेड ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द किडनी। सुना है आड्रेनालिन हार्मोन। अगर आड्रेनालिन हार्मोन क्या होगा? अगर ज्यादा आड्रेनालिन बढ़ेगा तो हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा। डू यू नो, आड्रेनालिन बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़ता है, बोलते नहीं? आड्रेनालिन ज्यादा सिक्रेशन होगा तो बीपी बढ़ जाएगा। आड्रेनालिन, जैसे तुम इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तुम्हारा आड्रेनालिन सिक्रेशन होता है, तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो आड्रेनालिन तुमको नर्वस कर देगा, आड्रेनालिन तुमको भयभीत कर देगा, नर्वस कर देगा आड्रेनालिन, आड्रेनालिन तुमको फोबिया कर देगा। इसलिए बोलते नहीं आड्रेनालिन सिक्रेशन नहीं करना। ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फियर बढ़ जाएगा, फियर फैक्टर आ जाएगा। तुम इंटरव्यू लेके जा रहे हो, सपोज IAS इंटरव्यू है, IAS इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो तुम क्या देख रहे हो कि अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं किया, 8-10 IAS अफसर को देख लिया, तुम्हारा धड़कन बढ़ने लगा, क्योंकि तुम चाहते हो कलेक्टर बनने के लिए IAS, तो उस टाइम तुमने नर्वस आ गया तुम्हारे बॉडी में। इसलिए बोलते नहीं नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना, एनर्जी के साथ कॉन्फिडेंट रहना। क्यों बोलते हैं? परीक्षा को जाने से पहले पूरा कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि अगर एड्रेनालिन सिक्रेशन हो जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, फोबिया हो जाएगा। तो एड्रेनालिन कहाँ से सिक्रेशन होगा? एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन सिक्रेशन होता है। तो वही सभी हार्मोन, एड्रेनालिन हमारे लिए अच्छा है। एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म करेगा, एड्रेनालिन हार्मोन, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट बा हार्ट बीट ये कंट्रोल करेगा एड्रेनालिन हार्मोन। अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो प्रॉब्लम है कि नहीं? तो एक्सेस हार्मोन डिजीज करेगा, लो 0 अमाउंट होगा वो भी डिजीज होगा।
जीरो अमाउंट जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी, अगर ज़्यादा बढ़ेगा उसका भी हाइपर मोर हार्मोन होगा तो डिजीज होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स प्रोडक्शन होगा एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट नहीं है। आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल तो बताऊंगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हार्मोन सिक्रेशन करेगा जो कि ये डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। देख लीजिए, अभी मैं ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। देख लीजिए, ग्लैंड्स क्या होता है। ग्लैंड्स एक्चुअली दैट इज मेड अप ऑफ, ग्लैंड इज मेड अप ऑफ क्यूबोइडल टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। ग्लैंड किसके द्वारा बना होता है? तुम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हो तो उससे पहले ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड होता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की तरह बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम और कॉलमनार एपिथेलियम। तो वही ग्लैंड हो जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। कभी कभी मैंने जो बताया हमारा बॉडी में डिफरेंट पार्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर ट्रैकिया में थायराइड ग्लैंड बोल दिया, ट्रैकिया में थायराइड ग्लैंड। ब्रेन में, ये फोर ब्रेन में दो ग्लैंड है। देख लीजिए, एक हो गया हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर, क्योंकि एक मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। वो मास्टर ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी। ये फोर ब्रेन में पहले हाइपोथैलेमस आएगा जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर, मास्टर ऑफ द मास्टर, क्योंकि मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा एक ही ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ओनली मास्टर। जैसे एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है सब कुछ, उसका नीचे रहेगा डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे सब ऑफिसर रहते हैं। तो मालिक होता है ऑल इन ऑल, चेयरमैन। जैसे कंपनी का मालिक होता है चेयरमैन, ऐसे तुम्हारा ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। सुप्रीम कमांड मतलब मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ द मास्टर अगर हाइपोथैलेमस हुआ, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे चेयरमैन कंट्रोल करता है डायरेक्टर को, चेयरमैन आते हैं सीधा डायरेक्टर के बैठे थे, क्या क्या हाल है। डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टर यहाँ पर एक स्कूल एजुकेशन है तो हमारा चेयरमैन सब कुछ है। चेयरमैन कंट्रोल करेंगे डायरेक्टर को, डायरेक्टर कंट्रोल करेंगे जितना सब प्रोफेसर को। वी आर द प्रोफेसर्स, वी आर कंट्रोलिंग बाय द डायरेक्टर, वी आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा थायराइड ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा थाइमस ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा। ऐसे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड को पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड किडनी का ऊपर रहता है, जो हार्मोन सिक्रेशन करता है एड्रेनालिन। सुना है कि नहीं? एड्रिनल ग्लैंड सुना है? ए, मेरा एड्रेनालिन सिक्रेशन नहीं करना, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि एड्रेनालिन अगर ज्यादा सिक्रेशन होगा तो बीपी बढ़ जाता है। बोलते नहीं बीपी बढ़ता है, एड्रेनालिन सिक्रेशन होता है। बोलते हैं कि नहीं मैं गुस्सा में हूँ, क्योंकि उसका एड्रेनालिन सिक्रेशन हो रहा है, वो गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल कर नहीं पाते खुद को, इतना गुस्सा आता है। एड्रेनालिन सिक्रेशन ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होकर बीपी बढ़ा देता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम जानकर लेंगे। एड्रिनल ग्लैंड, उसी ग्लैंड को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी। कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। इसीलिए तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रेशन देगा। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन आता है, किसका डायरेक्शन से? पिट्यूटरी डायरेक्शन। तो पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करेगा? चेयरमैन है उसका, पिट्यूटरी का कंट्रोल करता है hypothalamus. Hypothalamus is the supreme commander. Hypothalamus control to the pituitary and pituitary control to the other endocrine glands in our body. जैसे कंपनी का चेयरमैन सब कुछ होता है, एक स्कूल एजुकेशन का चेयरमैन सब कुछ होता है। चेयरमैन कंट्रोल करेंगे डायरेक्टर को, डायरेक्टर कंट्रोल करेगा प्रोफेसर को। ऐसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल करेगा जितना सब एंडोक्राइन ग्लैंड को। इसलिए मास्टर ऑफ द मास्टर कहते हैं हाइपोथैलेमस एंड मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड इन आवर बॉडी। जैसे मैंने बोला थाइमस यहाँ पर है, थाइमस को कंट्रोल करेगा। थायराइड यहाँ पर है, थायराइड को कंट्रोल करेगा। पिनियल ग्लैंड यहाँ पर है, पिनियल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। देखो जहां जहां पर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल कर रहा है।
इवन इफ टेस्टिस, ओवारी को भी टेस्टिस, डू नो टेस्टिस, ह्यूमन में टेस्टिस होता है, ओवारी, डू नो ओवारी, ओवारी को कंट्रोल करेगा। तो यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल करेगा, जितना एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला एक ही ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड और सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ग्लैंड इसका पर डिस्कशन किया जाएगा। तो पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानकारी देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और भी ग्लैंड है, देख लीजिए, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, यहां पर आपको 3 ग्लैंड के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तुम्हारा मेन ग्लैंड तो यहां पर हम पढ़ाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डॉक नहीं है। सी द एंडोक्राइन ग्लैंड, सी द एंडोक्राइन ग्लैंड, दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये देख लीजिए, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये क्या है, व्हाट इज दिस? एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट है, डक्ट इज प्रेजेंट, दिस इज द डक्ट इज प्रेजेंट इन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है। मिक्स्ड ग्लैंड में देख लीजिए, मिक्स्ड ग्लैंड में ये पार्टली एंडोक्राइन एंड पार्टली एक्सोक्राइन। मेरे को बताइए, 2 ग्लैंड है, एक होता है ए, एक होता है बी, तो एंडोक्राइन कौन सा होगा? एंडोक्राइन कौन सा होगा? ए होगा या बी होगा? ए होगा। एक्सोक्राइन कौन सा होगा? बी होगा, क्योंकि उसका डक्ट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का डक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का डक्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का डक्ट नहीं है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं है, उसका जितना सब हार्मोन सिक्रेशन होगा, उसका हार्मोन याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड से ओनली हार्मोन सिक्रेशन होगा, ओनली हार्मोन्स। जैसे तुम बोल रहे हो थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालिन, है कि नहीं? थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालिन, इशू हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन, इशू ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रेशन होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जब उसका हार्मोन सिक्रेशन होता है, सी द हार्मोन्स, सी द हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है डायरेक्ट, ये हार्मोन्स दिखाओ, ये हार्मोन्स डायरेक्ट ये कहाँ आएगा? ब्लड को आएगा। दिस इज द ब्लड, दिस इज द ब्लड, ये डायरेक्ट ब्लड को आ जाएगा। हार्मोन्स डायरेक्टली सीक्रेट इनटू द ब्लड, दिस इज द हार्मोन, दिस इज द हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन डायरेक्टली ब्लड को आ जाता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली दैट सीक्रेट द हार्मोन टू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली सीक्रेट द हार्मोन टू द ब्लड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन को लाने के लिए कोई डक्ट नहीं है, नली नहीं है, नली नहीं। एंडोक्राइन ग्लैंड रो जेतले हार्मोन आसुची सेटा डायरेक्ट आसी ब्लड रे मिसी जाउची, बुझिला? यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड रो हार्मोन बाहरिबो नाही। तो बोले कि सर फिर क्या सिक्रेशन होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट टाइप का, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है। सपोज एक एग्जांपल दूंगा, मामारी ग्लैंड, फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन होगा, डिलीवरी के बाद फीमेल का मामारी ग्लैंड से, ब्रेस्ट में मामारी ग्लैंड है, वो मिल्क निकलेगा। तो मिल्क मामारी ग्लैंड से आता है, वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि उसका एक डक्ट है, मामारी डक्ट। मामारी डक्ट के द्वारा मिल्क निपल्स के द्वारा बाहर आएगा, तो मामारी ग्लैंड होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मामारी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है मिल्क। क्या होता है? मिल्क। सपोज स्वेट ग्लैंड है, अभी मेरा पसीना निकल रहा है, स्वेट, देख लीजिए ये स्वेट है, यहाँ पर डक्ट है। तो बोले सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई देगा थोड़ी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, मैग्नीफाइंग लेंस में भी नहीं चलेगा, उसके लिए 1000x 100x का ये होना चाहिए, जो कि मैग्नीफाइंग लेंस से भी बहुत क्लियर आएगा नहीं परहाप्स। तो यहाँ पर डक्ट है, कौन सा डक्ट है? स्वेट ग्लैंड का एक डक्ट है, स्वेट डक्ट, जिसको कहते हैं सिडोरिफिक। क्या कहते हैं? सिडोरिफिक। तो स्वेट ग्लैंड का डक्ट से स्वेट आएगा। देखो मेरा स्वेट निकल रहा है, मेरा स्किन ऑयली है, सेबेसियस ग्लैंड है, ऑयली ग्लैंड है, उसका डक्ट है। जैसे मैं रो रहा हूँ, आई एम ड्रॉपिंग माई टीयर्स फ्रॉम माई आई, मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग, द टीयर्स ड्रॉप डाउन, द टीयर्स ग्लैंड है। टीयर्स ग्लैंड जो है वो टीयर्स ग्लैंड, यहाँ पर आंख में लैक्रिमल ग्लैंड बा टीयर्स ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो लैक्रिमल डक्ट की तरह यहाँ पर देखा
डक्ट के द्वारा टीयर्स निकलेगा। तो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा नहीं, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट टाइप का होता है। कभी स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट सिक्रेशन करेगा। कभी सेबासियस ग्लैंड होता है या ऑयल ग्लैंड होता है, ऑयल सिक्रेशन करेगा। कभी मामारी ग्लैंड होता है, मिल्क सिक्रेशन करेगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट रहेगा, लेकिन डक्ट में डिफरेंट टाइप का सिक्रेशन आएगा, डिफरेंट टाइप का सिक्रेशन। जैसे मामारी ग्लैंड का सिक्रेशन क्या है? मिल्क। स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन क्या है? स्वेट। ऑयल ग्लैंड का सिक्रेशन क्या है? ऑयल। अब बताओ कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन कर रहा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन को छोड़ के बाकी सब सिक्रेशन होगा। हार्मोन को छोड़ के बाकी सब सिक्रेशन होगा। कभी ऑयल ग्लैंड, ऑयल सिक्रेशन, स्वेट ग्लैंड, स्वेट सिक्रेशन, मामारी ग्लैंड, मामारी। देखो यहाँ पर मेरा मुंह में सलाइवा आ रहा है, मेरा मुंह में भी सलाइवा आ रहा है। सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से आता है। डू यू नो सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड? डू यू नो सलाइवा सलाइवा लाड़ सैलिवरी ग्लैंड रही। तेणु सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा आसते एंजाइम अच्छी, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। अब बताओ सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा सिक्रेशन हुआ? सलाइवा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट टाइप, एंड डिफरेंट टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट निकलेगा। डिफरेंट टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट निकलेगा। तो जैसे तुमने बोला सैलिवरी ग्लैंड्स, मामारी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, है ना, ऑयल ग्लैंड, ओके, लैक्रिमल ग्लैंड जैसे टीयर सिक्रेशन हुआ। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? पार्टली एंडोक्राइन, पार्टली एक्सोक्राइन। बार बार बोल रहा हूं, पार्टली एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डिफरेंट टाइप का सिक्रेटरी प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप का सिक्रेटरी प्रोडक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो डिफरेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी मिक्स्ड ग्लैंड, पार्टली एंडोक्राइन, mixed gland, partly endocrine, and this is partly exocrine, mixed gland, partly endocrine, partly exocrine। आपको मैं बताऊं कि गोनाड, टेस्टिस, सुना है टेस्टिस? टेस्टिस इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों टेस्टिस को मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे? टेस्टिस का एक पार्ट से हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरोन, वो एंडोक्राइन पार्ट से आता है। एंडोक्राइन पार्ट प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है टेस्टिस से स्पर्म भी प्रोडक्शन होता है, स्पर्म, तो उसका एक्सोक्राइन पार्ट से स्पर्म प्रोडक्शन होता है। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं, एक्सोक्राइन पार्ट से हार्मोन कभी नहीं आएगा। एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रेशन होगा या डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो सकता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट, टेस्टिस का एक्सोक्राइन पार्ट स्पर्म प्रोडक्शन करेगा, एक्सोक्राइन पार्ट टेस्टिस का एक्सोक्राइन पार्ट स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। टेस्टिस एग्जांपल है टेस्टिस, टेस्टिस का एक्सोक्राइन पार्ट यहां पर लिख रहा हूं, एक्सोक्राइन पार्ट स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। अच्छा, उसका एंडोक्राइन पार्ट क्या प्रोडक्शन करेगा? एंडोक्राइन पार्ट, टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट सुना है टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जो कि ड्रामेटिक चेंजेस लाता है मेल में। निशधारी उठिଯିव टेस्टोस्टेरोन, लिबिडो बा सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप करिवो, है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करो। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा, वो एंडोक्राइन पार्ट से। तो एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन आया टेस्टोस्टेरोन, एंडोक्राइन पार्ट से टेस्टोस्टेरोन आया। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया ओवारी, ओवारी का एक बात है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट से एस्ट्रोजन सुना होगा, एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन। एक्सोक्राइन पार्ट से एक सेल जिसका नाम है सुना होगा सेकेंडरी oocyte और ओवम, एक सेल प्रोडक्शन होगा। तो मेरे को बताओ वो जो ओवारी आपने बताया, ओवारी का तो दो पार्ट है, एक होगा एंडोक्राइन पार्ट और एक होगा एक्सोक्राइन पार्ट। तो एंडोक्राइन पार्ट से कौन सा हार्मोन आया? एस्ट्रोजन सुना होगा। एस्ट्रोजन भी ड्रामेटिक चेंजेस फीमेल में, ड्रामेटिक सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल डिजायर व सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करता है एस्ट्रोजन। एंड एक्सोक्राइन पार्ट से एक सेल आता है जिसको कहते हैं ओवम बा सेकेंडरी oocyte। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवारी एंड टेस्टिस ये हो गया मिक्स्ड ग्लैंड, ओवारी एंड टेस्टिस ये हो गया मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, you know about the pancreas also that is known as mixed gland। pancreas का एंडोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है। आपने सुना होगा एंडोक्राइन पार्ट इंसुलिन सिक्रेशन होता है, pancreas से इंसुलिन आता है, वो एंडोक्राइन पार्ट से आता है। और एक्सोक्राइन पार्ट से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स सुना भी होगा,
that is pancreatic lipase, pancreatic amylase, pancreatic lipase, pancreatic amylase, trypsin, ये सब एंजाइम आता है, trypsin एंजाइम, pancreatic lipase, pancreatic amylase। तो एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम प्रोडक्शन होगा, तो एक्सोक्राइन पार्ट से एक हार्मोन नहीं आएगा, एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम आएगा। एंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन सुना होगा, इंसुलिन ग्लूकागॉन, इंसुलिन का हार्मोन नाम सुना होगा। इंसुलिन कमी से डायबिटीज मेलिटस बीमारी होता है, डायबिटीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो पैनक्रियाज हो गया उसका जो ग्लैंड है दैट इज नोन एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड।